फौजी ऑपरेशनों के नाम पे वार इकानमी का तसलसल है। घर, गांव, मस्जिद, हुजरा, बाजार हमारी मिलियामेट होते हैं और दुनिया को बताया जाता है कि दहशतगर्दों को हमने मार दिया। किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, आम पश्तूनों को तबाह किया है। तनख्वाह के अंदर बदअमनी का ये मसला कोई आम मसला नहीं है। ये पैदा हुआ है रियासत की गलत खारजा अफगान पॉलिसी की वजह से। لارانی په غریبۍ کې سبق وای چې هغه دلته راشي او ټیسټ ورکړي، ټیسټ کوالیفای کړي، ټاپیم کړي، خو هغه ته نوکري نه میلاویږي. ویل رشوت را سره نشته دی. د دغه کرپشن خاتمه به کوو، د رشوت مخنیوی به کوو، حق به حقدار ته رسوو. دا هم د دې ځوانانو سره لوز دی. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अदनान शहदानी और इस वक्त बाजेवड़ में। अच्छा, करंट बाजेवड़ आने का मेन रीज़न यहाँ पे MPA शिप का एक सीट पे इलेक्शन रह गया था, वो इलेक्शन अभी होगा। और उस हवाले से अगर हम KP के लेवल पे देखें कि NP के कुछ नुमाइंदे जो कि जिनके पहचान जो है वो पूरी हमारी खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे है। मौलाना खानज़ेब एक जाना पहचाना नाम, इसके अलावा निसार बाज़ खान। अगर आप KP के अंदर कहीं पे भी किसी से पूछ लें तो वो आपको यही बताएंगे कि यार अगर पठान पख्तू ज़बान की अगर हकीकी कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत, उम्मीदें हैं कि ये लोग KP के लेवल पे जा कर के डिलीवर करेंगे। دا پیغام هغه چاته ورکو چې د یو حلقې د الیکشن نه د کوپر او د اسلام جنگ ما جوړوي. خطر د پښتنو سرونو ته پیښه ده، خطر د پښتنو وطن ته پیښه ده. هرونه چې په دې ماموندو کې یو ډاکټر پرانا ورځ باندې قتل کو، دا د خاورې بچو. ډاکټران هم لا څوک وژني په یو وطن کې، علما هم لا څوک وژني په یو وطن کې، سیاستمدار هم لا څوک وژني په یو وطن کې. که موږ دا قام یو شو، په ننګ باندې ودرېدو، تاسو باور وکئ چې پښتون خو څه کې د پښتون چرګ به هم رانه په کم د ایران باندې څوک ونه وژني. په دې بنیاد درته خبره کوو چې څومره هم دا ولاړ امیدواران دي، د نثار باز د مقابلې او د اهلیت سړی نشته دی په دی کې. په 11 تاریخ باندې په قامي ننګ او غیرت باندې ټول به په شریکه باندې روزو. نثار باز به کامیابو، د نثار باز نه په مقابله کې دا ټول به نور مسترد کوو. لاسونه پورته کوي ملګرو چې نثار باز دا ستاسو ضرورت دی، د قام ضرورت دی. ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ. ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ. او دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ، مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو. ډېره مننه. یقینا چې ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په کومه خاوره باندې زه ولاړ یم. د دې ځوانانو د دې مشرانو ته ما پرون هم د دې غیرت او پښتو ته سلام کړی. سلام همیشه دپاره موږ په دې خاوره هغه خبره کړې ده ملګرو چې کومه خبره نه چا کړې ده او نه یې کولی شي. زموږ ارمان او خواهش د نثار باز دغه اسمبلۍ ته په دې باندې دی چې په دې خاوره خو چې چرته هم ظلم کیږي، زیاتې کیږي، بې انصافي کیږي، احتجاج کیږي، درنه کیږي یا بل څه قصه یي، پاکې موږ پیش یو او د ټولو نه مخکې ولاړ یو. لارانی په غریبۍ کې سبق وای چې هغه دلته راشي او ټیسټ ورکړي، ټیسټ کوالیفای کړي، ټاپیم کړي، خو هغه ته نوکري نه میلاویږي. ویل رشوت را سره نشته دی، پیسې رانه غواړي. یو سکیل ویل 1 لاک روپۍ، ویل 12 سکیله ده نو 12 لک روپۍ غواړي. د دغه کرپشن خاتمه به کوو، د رشوت مخنیوی به کوو، حق به حقدار ته رسوو. دا هم د دې ځوانانو سره لوز دی. دا د سابقه پارلمنټیرین نه تپوس پکار دی. دروغو وعدې کوئ د سړکونو، د ټرانسفارمر او د سولرو، د دې قام قیمتي وخت ولې ضایع کو؟ دا سوال به دا ځوانان کوي، دا قام به ته کوي. او دا فیصله به چې کومه دی په 11 د جولای باندې کوي چې دغه احتساب ورسره وکړي چې د راتلونکي وخت دپاره اوس احساس پیدا شي چې اثار نه څوک دې قام ته دروغ نه وایي. अच्छा माशाल्लाह यार, बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रोग्राम आपने देखा अवामी नेशनल पार्टी का। आप इन सरबाज भाई को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। क्यों? वो दिलेर है, वो मुंह से नहीं बोलता, जो दिल पे होता है वही बोलते हैं। इससे पहले आप लोगों के इलाके का मैं रेहान ज़ैब को देखता था, उसकी जिस तरीके से सोच थी, एक ब्रॉड माइंडेड सोच थी,
सेम निसार भाज भाई की भी वही उसी सेम तरीके सेम से। टू सेम उसी तरह के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। एक प्यारा सा चेहरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि सुर्ख टोपी क्यों पहनी है आपने? मैं अवामी नेशनल पार्टी का कारकुन पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साबिक़ा सदर हूँ। अच्छा, तो सुर्ख टोपी तो हमारा पहचान है। आजकल हम देखते हैं कि अक्सर नौजवान जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, और आप अवामी नेशनल पार्टी को क्यों? अवामी नेशनल पार्टी पख्तून की पार्टी है और पख्तून की बेसिकली पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप हमेशा मजलूम का साथ देती है, हमेशा ग्राउंड पे हुकूक के लिए खड़े होते। तो अगर आवाम इतिमाद नहीं करते, इन लोगों की अपनी गलती है, लेकिन अगर इतिमाद करे या ना करे, अवामी नेशनल पार्टी एक खुदाई खिदमतगार तंजीम है। इस तरीके से आप लोगों के साथ मेरा एंट्रो हुआ कि यार यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के एक कैंडिडेट है, वो भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और मौलाना खानजेब का मैंने आपको बताया था। तो जनाब मिलिएगा मौलाना खानजेब साहब से। यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है? यहाँ पर तो 8 फरवरी को जर्नल इलेक्शन था। अच्छा, मैं उसमें 8 पे अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कैंडिडेट था। ठीक है। फिर बदकिस्मती से इलेक्शन से एक हफ्ता पहले अच्छा, हमारे एक कैंडिडेट रेहानजेब को टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया, मार दिया गया। उसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हुआ जी। फिर ये दोनों सीटें रेहानजेब के भाई ने जीती। अच्छा, फिर कानूनी तौर पर आईनी तौर पर चूंकि अब दोनों सीटें नहीं रह सकती, तो अब 11 जुलाई इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसके मुताबिक यहाँ पर ज़िम्नी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि निसारबाज 11 जुलाई को इस सीट पर कामयाबी हासिल करेगा। वैसे मौलाना खानजेब साहब को जमीयत उलमा इस्लाम में नहीं होना चाहिए था। बात ऐसी है कि बदकिस्मती से पश्तून अपनी तारीख से ना खबर है। मैं खुदाई खिदमतगार तहरीक की अगर आपको मिसाल दे दूं कि हर पश्तून नौजवान को अपनी 100 साल हिस्ट्री, कौमी तारीख ये जरूर पढ़ लेनी चाहिए। रियासत का निसाब झूठा है, रियासत ने हमें झूठी तारीख पढ़ाई है। 100 साल हिस्ट्री अपनी पढ़ ले ताकि वो अपनी जोग्राफिया, अपने मसाइल सब कुछ समझ सके। इसी बुनियाद पर हम अवामी नेशनल पार्टी में है कि पश्तूनों के कौमी मसाइल मुकदमा और बयानिए पर सिर्फ और सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी एक साइंसी मंशूर रखती है। किसी भी जमात के पास पश्तूनों के मसाइल का हल नहीं है। हम अवामी नेशनल पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो हमारी बंद तिजारत और रास्तों की बात करते हैं, वो हमारे खित्ते की बदमनी की बात करते हैं। वो आज भी अयमल वली खान की तकरीर सेनेट के फ्लोर पर आपने सुनी होगी कि फौजी ऑपरेशनों को उसने मुस्तरद कर दिया है कि भाई फौजी ऑपरेशन के नाम पे तो आपने पश्तूनों को तबाह किया। हमारे पश्तून जो है उनके कदम मजबूत होने लगे हैं। जिस तरीके से हम सिंध में या पंजाब में मुख्तलिफ जो लोगों को अगवा करते हैं उनकी वीडियोस देखते हैं, हमारे KPK में तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हमारे ऊपर हो रहा है। पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी का ये मसला कोई आम मसला नहीं है। ये पैदा हुआ है रियासत की गलत खारजा अफगान पॉलिसी की वजह से। अफगानिस्तान अफगानियों का है, किसकी हुकूमत है नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा होगा, काबुल में वही हुकूमत बनेगी जो हम चाहेंगे, ये हालात रियासत के गलत पॉलिसियों के नताइज की सूरत में बने हैं। आप एक और फौजी ऑपरेशन करते हैं, 17वां बनेगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे की सूरत में हम मजीद तबाह होंगे। हम ये समझते हैं कि ये मसला रियासतों के दरमियान है। बदकिस्मती से फौजी ऑपरेशनों के नाम पे वार इकानमी का तसलसल है। घर, गांव, मस्जिद, हुजरा, बाजार हमारी मिलियामेट होते हैं और दुनिया को बताया जाता है कि दहशतगर्दों को हमने मार दिया। किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, आम पश्तूनों को तबाह किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।